How are you, beta? I hope you are fit and fine. This is your accountancy class, and today we will discuss our next topic. बेटा मैंने आपको लास्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसकी मैंने थ्योरी पार्ट भी आपको सेंड कर दिया था। रिटन वर्क के लिए न्यूमेरिकल पार्ट भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन सेंड कर दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो बेटा आपने वो सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बट ऐसा है कि बेटा इस वीक में ही आप उस चैप्टर को खत्म कर दो। मैं आज आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवा रही हूँ, ठीक है। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, जो मैंने आज आपको थ्योरी पार्ट ही करवाना है सिर्फ इस चैप्टर का। बेटा अपने ना अपनी पेन नोटबुक अपने पास रखनी है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करते जाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू। सो dear students, in our in last class we have discussed about the not for profit organization. Arpit ma'am, sir ma'am. So beta, in our last class we have discussed about the not for profit organization, the organization who are working for welfare of people, not for any type of profits. So from today we will discussing about the profit organization. Okay, profit organization, there can be one person, partnership, joint stock companies, Hindu undivided families. These type of business are mostly run for profit making purpose. Okay, so the main purpose of the type of organization is to earning more and more profit. Okay, so let's start our topic. The chapter number 2, accounting for partnership firms. फर्स्ट फर्स्ट जो पार्ट है बेटा वो है फंडामेंटल। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द learning objective. First is meaning and definition of partnership, essential features or characteristics of partnership, right of partners, partnership deed, importance of partnership deed, provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed, interest on partners loan to the firm, distribution of profit among partners, special aspects of partnership accounts, partners capital account under fixed and fluctuating method, salary commission to partner, interest or interest on partners drawing, interest on partners capital, adjustment of incorrect appropriation of profits in the past, guarantee of profit. So the first topic is beta meaning and definition of partnership. As we know from the word partnership, partnership is an association between two or more persons who agree to do business and share its profits and losses. The partner act both as agents and principals of the firm. सो बेटा अगर हम देखें कि पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, ये दो पर्सन की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एग्री करते हैं कि हम लोग एक बिजनेस है जो वो
शुरू करेंगे और उस बिजनेस को आगे तक लेके जाएंगे। उस बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। सो बेटा कई बार तो वो लोग क्या करते हैं कि आपस में 1:1 रेशो रख लेते हैं, ठीक है, कि आधा आप ले लेना आधा मैं ले लूंगा। बट सम टाइम के वो अपनी रेशियो चेंज भी कर सकते हैं। किसी को दो हिस्से मिल गए, किसी को एक मिल गया, किसी को चार मिल गए, किसी को दो मिल गए। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना जो है जो भी प्रॉफिट लॉसेस होंगे वो आपस में बांट लेंगे। सो partnership is defined by Indian Partnership Act 1932 section 4. This is most important section beta, you have to keep in keep it in your mind what is the section of partnership act, ठीक है, what is the year of partnership act. So whenever you will write a theory on partnership you will definitely write the partnership act 1932 section 4. Okay, as follows: partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है बेटा, रिलेशनशिप होता है पर्सन्स के बीच में जो क्या करते हैं, वो एग्री करते हैं कि हम इस प्रॉफिट इस बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट्स होंगे। हाँ जी, ऊपर तो सर वही है जीसीएस स्मॉल लेटर से फिर गॉड कोड पासवर्ड भरेगा बस। हाँ जी, स्मॉल लेटर से जी जीसीएस जे बाई चांस जीसीएस स्मॉल वाला ना सही हो फिर कैपिटल से पाके देख लो। सो बेटा दो पर्सन की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है जो आपस में क्या करते हैं, एग्री करते हैं कि हम प्रॉफिट्स हैं जो वो एक आपस में बांट लेंगे ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो आपस वो जो भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वो डिसीजन कर लेगा। ठीक है बेटा। सो पार्टनर्स की जो आपसी सहमति है बेटा वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अ पार्टनरशिप दस इज अ बिजनेस रिलेशनशिप among two or more person to share profit and losses of the business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है। पार्टनर्स firm and firm name: the person who have entered into a partnership with one another इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। जो पर्सन बेटा एंटर होते हैं, जो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको पार्टनरशिप पार्टनर्स बोला जाता है। तो वो मिलके क्या बन जाती है, एक फर्म बन जाती है। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। तो जो दो पर्सन या चार पर्सन जितने भी होते हैं मिलके काम करना शुरू कर देते हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं कि वो फर्म बन जाती है, फिर उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे हमारे आसपास बेटा मार्केट में कहीं तो आपको सिंगल सोल प्रोप्राइटर मिल जाएंगे। सोल प्रोप्राइटर मींस जो सिंगल पर्सन है वो सारा कारोबार देख रहा है। कहीं पे दो या तीन लोग मिलके अपना पार्टनरशिप करके भी जो है शोरूम चलाते हैं, शॉप्स चलाते हैं, जो बहुत सारे है ना बिजनेस करते हैं बेटा। सो वो उनका एक कोई ना कोई स्पेसिफिक नाम होता है। ठीक है, चाहे वो एक सिंगल पर्सन चला रहा है, चाहे वो नंबर ऑफ पर्सन द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है बेटा। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कैरी बैग लिया देखो। So, a nature of partnership. Partnership is a separate business entity from the accounting point of view. So, बेटा partnership जो होती है वो separate business entity होती है। However, from the legal point of view, a partnership uh, a partnership firm is not a separate legal entity from its partner। बेटा जो पार्टनरशिप होती है ना उसमें जब बिजनेस शुरू हो जाता है तो जो फर्म का काम है तो वो पार्टनर से अलग नहीं माना जाता। इट मींस फर्म्स दैट कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट ऑफ द पार्टनर। बेटा इस लाइन को ना आप अच्छे से अभी समझना, मैं दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है,
ध्यान से देखो बच्चे, 1 मिनट। बेटा look at this line, it means firms that, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपने, it means firms that can be paid from private asset of पार्टनर। इसका क्या मतलब है बेटा, देखो जब हम लोग बात करते हैं ना कि कंपनी की बात करते हैं बेटा, जैसे शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है, शेयर कैपिटल का टॉपिक आपने सुना था, समझा था मेरे से, ठीक है। उसमें क्या था बेटा, जो शेयर कैपिटल होता है वहां पे कंपनी जो होती है वो अपने पार्टनर से बिल्कुल अलग होती है, या फिर अपने मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। कंपनी का मेंबर से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे वो पर्सन कंपनी में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, कोई जी रहा है कोई मर चुका है, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो क्या होता है, जिस पर्सन ने जितने जितने शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं, हो सकता है वो उतना पैसा उनका वापस ना आए। उसके बाद कंपनी जो है वो पार्टनर को या जो मेंबर्स होते हैं उसको क्लेम नहीं कर सकती कि हमें लॉसेस हैं जो वो पूरे करने हैं आपके पैसे से। बट जब पार्टनर इसलिए हम उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है बेटा, जब एक कंपनी है ना जो वो अपने जो होते हैं मेंबर्स उनसे अलग होती है, तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। बट जहाँ पे वो किस केस में होता है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में के केस में होता है कि कंपनी में मेंबर्स आते जाते रहते हैं, तो कोई भी आया कोई भी गया कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंपनी अगर लॉस में भी चली जाती है तो वो लॉस बियर कर लेती है, ठीक है। कुछ भी हो कंपनी लॉस है जो बियर कर लेगी। बट यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो पार्टनरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। यहाँ पे जो लास्ट लाइन मैंने अभी अंडरलाइन की है, इट मीन्स फर्म्स दैट कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर। अगर आप कंपनी के मेंबर हो तो आप बच नहीं सकते, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको अपना जो है वो लॉस चुकाना पड़ेगा। बेशक आप अपना घर बेच दो, बेशक आप अपने पूरे का पूरा पैसा लगा के पार्टनर्स को जो लोन वगैरह है वो चुकता करने पड़ते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा अंडरस्टैंड, ये पॉइंट समझ आ गया सभी को? प्लीज डू थम्स अप। बेटा सभी बच्चों बच्चे अपनी, बेटा सभी बच्चों ने अपनी अटेंडेंस सेंड कर दी क्या? सो बेटा आप अपनी ना टाइम पे ग्रुप जब भी ओपन होते हैं अपनी अटेंडेंस है जो वो सेंड कर दिया करो, ठीक है, सो देट आपकी प्रॉपर जो अटेंडेंस है वो टाइम पे लगती रहे। कब कितने टाइम का बेटा ग्रुप ओपन हुआ है बट आपकी अटेंडेंस नहीं आई, टाइम, अब जब भी आपको ग्रुप ओपन मिले तो आप उसमें अटेंडेंस सेंड कर दिया करो, ठीक है ना, मॉर्निंग में। ओके बेटा, सो लेट्स डू नेक्स्ट।
बेटा यहाँ तक समझ आ गया सभी को? सो लास्ट लाइन है बेटा, इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज। अगर फर्म की जो लाइबिलिटीज है वो उसके प्रॉफिट में से, ठीक है, जो पहले पैसा कमाया है उनके उसमें से पे नहीं हो पा रही, तब क्या होगा? तब कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा? जो उसके पार्टनर्स हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके कंपनी के लिए पैसे का क्या करेंगे? बंदोबस्त करेंगे। ठीक है ना? तो पार्टनर यहाँ पे बच नहीं सकते कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन का अभी पार्ट है। ठीक है ना? पार्टनरशिप का पार्ट है बेटा, इसलिए उनको ये करना पड़ेगा। अगर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स होते तो क्या होता बच्चे? तो सिचुएशन डिफरेंट होनी थी। ठीक है ना? मैम, मैडम, हाँ जी बेटा, सो यहाँ तक बेटा समझ आ गया आपको? जिस जिसको समझ आ गया थम्स अप कर दो बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है? essential features of or characteristics of partnership. Essential features and feature or characteristics of partnership. Two or more persons. First of all, क्या characteristics है बेटा इसके? Two or more persons. There must be at least two person to form a partnership, and all such person must be competent to contract according to Indian Contract Act 1872. Every person एक्सेप्ट द फॉलोइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। देखो बेटा, वो लोग ना कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होने चाहिए। उनमें जो नीचे दी गई है वो प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। एक तो वो माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो जिसका माइंड सेटअप सही नहीं है, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ठीक है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया है लॉ ने, तो आप क्या कर उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो नहीं कर सकते। ठीक है? बट उसके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है ना? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government to prescribe maximum number of partner in a firm, but the number of partners so prescribed cannot be more than 100। देखो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग किया था कि मिनिमम नंबर्स बेटा 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किसमें? पार्टनरशिप में। The central government has prescribed maximum number of partner in a firm to be 50। Wide rule 10 of companies rules 2014 in effect, partnership firm have more than cannot to have more than 50 members। सो बेटा ये 2013 का एक्ट था। ठीक है? बट जो 14 का एक्ट आया बेटा उसके अकॉर्डिंग 50 से ज्यादा पर्सन एक पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते, एक ही फर्म में काम नहीं कर सकते। एग्रीमेंट पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट ईदर रिटन और ओरल। सो बेटा पार्टनरशिप जो जब भी हम पार्टनरशिप के लिए रेडी हैं, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वहां पे एक एग्रीमेंट है जो साइन होना चाहिए, जो रिटर्न में होता है और या फिर ऑरल में होता है। मोस्टली क्या करना चाहिए? रिटर्न में ही होना चाहिए।
ताकि वो एक प्रूफ के तौर पे उसको यूज किया जा सके। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज द बेसिस ऑफ their relationship, which may be for particular venture for a period or at a will। ठीक है, the written agreement among the partner is known as partnership deed। अगर बेटा उन्होंने written में agreement कर रखा है तो that we will call it partnership deed। ठीक है, this is most important topic बेटा। what is partnership deed, what are the main points in the partnership deed, we will discuss them later। Lawful business. A partnership is established for a lawful business. Business include trade, vocation, and profession, but not a joint ownership or charitable activity। बेटा यो अगर कोई भी पर्सन एग्रीमेंट करके अपनी पार्टनरशिप करके काम शुरू कर रहा है ना, तो वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए जिसको लॉ की अप्रूवल हो। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो लॉ ने अप्रूव ना किया हो। ठीक है, वो ट्रेड कर सकते हैं, वोकेशन कर सकते हैं, कोई प्रोफेशन हो सकता है, बट नॉट अ जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप तो वो फिर कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो वो कंपनी नहीं, ना ही वो चैरिटेबल काम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी share profit and losses of business। It is not essential that all partner must share losses also। ठीक है, ऐसा there may be a provision in the partnership deed that a particular partner or particular partners shall not bear the losses। so बेटा ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पार्टनर को लॉस हो। ठीक है ना, जो भी एग्री हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो है अपना काम है जो वो पार्टनरशिप का वो कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है ना। So profit sharing, how will they share the profit? The agreement among the partner must be share must be uh, to share profits and losses of business। It is not essential that all partners must share losses also। There may be a provision in partnership deed that particular partners shall not bear losses। ठीक है बेटा, सो ये तो पहले वाला पॉइंट ही है हमारा कि मेंशन भी किया जाता है कि ये वाला पार्टनर है जो उसको लॉस हम नहीं देंगे, हम आपस में बांट लेंगे। ये पर्सन इतने प्रॉफिट्स लेगा, ये इतने लॉस लेगा, तो वो मेंशन किया जाता है। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स की। ठीक है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस The business of the partnership can be carried on by the partners or by any of them acting for all partners। देखो कई बार ऐसा होता है ना बेटा कि चार लोगों ने मिलके बिजनेस शुरू कर लिया, मान लो तीन लोग हैं जो फॉरेन में रहते हैं, जो चौथा है वो यहाँ पे इंडिया पे काम कर रहा है, तो वो एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कई बार ऐसे भी बिजनेस है जो कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, इन अदर वर्ड पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल्स। एजेंट क्या होता है बेटा? represent other partner and thereby bind them through his acts। जो वो एजेंट क्या होता है, अदर पार्टनर्स के लिए रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, हम यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाइंड करके रखता है वो सभी एक्टिविटीज को इकट्ठा। ठीक है, कि सब कुछ सही चलता रहे। एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, एज अ प्रिंसिपल क्या होता है कि अदर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं वो इस बात से जो है वो बाउंडेड होता है। ठीक है, राइट्स ऑफ पार्टनर। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। एवरी पार्टनर हैज टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स। ये पार्टनर्स के बेटा राइट्स हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट the books of account and have a copy of it। Every partner has the right to share profit or losses with other in agreed ratio। ठीक है ना, तो जो वो रेशो तय करते हैं उसके मुताबिक ही जो है वो आगे काम चलता है। Next is if a partner has advanced loan, he has the right to receive interest।
अगर किसी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है तो उसको कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी हमारे जो लॉ के अकॉर्डिंग, कितने परसेंट, 6%। अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया गया बेटा, अगर किसी पार्टनर ने अब कंपनी को जो है वो इंटरेस्ट दिया, सॉरी जो लोन दिया है, तो उस पे उसको जो है इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट है जो उसको मिलेगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया डीड में, तो 6% जो है पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। In case of an emergency, a partner has the right to act according to his best judgment and indemnified for expenses incurred by him. आपको अपनी जो है वो जजमेंट के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। ठीक है, a partner has the right not to allow the admission of new partner, न्यू पार्टनर की एडमिशन को अलाउ नहीं किया जाता। कर सकता अगर वो चाहे, मान लो एक तरफ 10 मेंबर हैं, एक पर्सन एक मेंबर, अगर एक ने मना कर दिया ना कि नए पार्टनर को नहीं लेके आना, तो वो 10 की भी जो होगी वो इतना नहीं है कि वो अपनी मर्जी से न्यू पार्टनर ले आएंगे। ठीक है ना, सो अगर वो चाहे तो मना कर सकता है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक नोटिस है जो वो दिया जाता है, अ पार्टनर हैज द राइट, तो उसको एक नोटिस के बाद फर्म से रिटायर भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट इज अ पार्टनर हैज द राइट, ओके, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, पार्टनर को जो है वो रिटायर भी किया जा सकता है। इफ अ पार्टनर incurs expenses on the business or he pay amount on behalf of the firm, the partner gets indemnified for these payments from the firm। अगर उसने फर्म के लिए कोई भी पेमेंट की है बेटा, अपने अपने बिहाफ पे कर दी है, उसने फर्म के लिए की है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी पेमेंट्स है जो ले सकता है। ठीक है, तो बेटा पार्टनरशिप डील में आ गया अभी हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पॉइंट्स हैं जो वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली पार्टनरशिप comes into existence by an oral or written agreement. It is better to have written agreement to avoid any dispute। अगर आप चाहते हो ना कि फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप डीड है जो वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है ना, डिटेल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, इट इज लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय all the partners and all the partners and has clauses on the following। फर्स्ट क्या है बेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। डिस्क्रिप्शन मीन्स वहाँ पे पार्टनर के नेम्स हो गए, नेम्स, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, नेम एड्रेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शैल कैरी ऑन। ठीक है, कि कौन सा बिजनेस है जो वो कंपनी कर रही है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस दिन से आपने पार्टनरशिप है जो स्टार्ट की है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल to be contributed by each partner, whether the capital account shall be fixed or fluctuating। So बेटा this is the important point, कि आपको पता होना चाहिए, इसमें लिखा होना चाहिए अच्छे से कि कैपिटल जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितनी कितनी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, कि कौन सा पर्सन, कौन सा पार्टनर जो वो कितनी कैपिटल लेके आया बिजनेस के लिए। तो नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट काम है कि जो वो कैपिटल लेके आया है तो उसको फिक्स अकाउंट में रखना है या फिर फ्लक्चुएटिंग में। ठीक है, ये अकाउंट्स बेटा आपको बनाने सिखाए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड, अगर आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दोगे ना तो वो कितना अलाउ करोगे आप। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आप बेटा ड्राइंग्स पता है किसी को क्या होते हैं, हैंड रेज करो, किसी को पता है कि ड्राइंग्स क्या होते हैं।
What do you mean by drawings? हाँ जी बेटा, do you know what are the drawings? बेटा ड्राइंग्स मैंने आपको कितनी बार क्लास में बताया है, आप क्यों भूल जाते हो बच्चे? ड्राइंग्स का मतलब होता है बेटा कि जब भी कोई पार्टनर क्या करता है, हमारी जो फर्म है, जो बिजनेस है, उसमें से पैसे ले जाता है खुद के पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अगर फर्म के पैसे को एक पार्टनर पर्सनल यूज कर रहा है तो वो ड्राइंग्स बन जाती हैं। ठीक है, तो उस पे कई बार जो है कंपनी पहले से एग्री करके रखती है कि उसको इंटरेस्ट है जो वो देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बेटा पता चले ना आपको भी क्या हम कौन से पॉइंट पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ा रही हूँ बेटा मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तय करेंगे कि कितने कितने प्रॉफिट लॉसेस हैं जो हम जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो किस रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इस बात को भी वो पहले ही मेंशन कर देते हैं। ठीक है, कि आपने कितना देना है। अगर नहीं कुछ भी मेंशन किया हुआ बेटा तो क्या होगा, 6% आप लोग अलाउ करोगे जिस भी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया। रेमुनरेशन टू पार्टनर, अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन इफ एग्री टू बी पेड। अगर हमारे पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारे जो मेंबर दिन रात काम करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी पार्टनरशिप में, तो अगर उनको कोई भी सैलरी वेजेस वगैरह जो भी कमीशन वगैरह देना है तो उसको भी मेंशन करना जरूरी होता है, किसमें, पार्टनरशिप डीड में। ठीक है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो बेटा गुडविल होती है कंपनी की, ठीक है, वैल्यूएशन गुडविल, मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट। गुडविल का जो ट्रीटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे हमारे एक एक चैप्टर होगा गुडविल के। जो पार्टनर की जो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, वहां पे जाके आप गुडविल को जो है वो कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैसे रखोगे। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, द मैनर इन विच assets of the firm will shall be valued in the case of reconstitution। कितने कितना हमने रेट रखना है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ पार्टनर shall be settled in the case of रिटायरमेंट और डेथ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। क्योंकि कितने जो है कैसे सेटल करोगे आप अपने अकाउंट्स को, वो चीज भी मेंशन करना जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड, कितने कब से कब, 1 साल का रखना है आपको। ठीक है, 31 मार्च तक रखना है, 31 दिसंबर तक रखना है। तो वो भी तय काउंट करते हैं, किसमें तय किया जाता है, हमारा पार्टनरशिप डीड में। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट एंड ड्यूटीज भी मेंशन की जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम तक हम लोग जो है इकट्ठे काम करेंगे, ये भी मेंशन किया जाता है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन कि हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड, वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ पार्टनर और जॉइंटली, इकट्ठे सारा काम देखेंगे या फिर बैंक का, या फिर अकेले कोई एक, है ना। से उसके बाद है डेथ ऑफ पार्टनर, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिसॉल्व। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम बिजनेस का क्या करेंगे। ठीक है, वो चीज भी मेंशन करनी जरूरी होती है यहाँ पे। सेटल ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में तो उसको कैसे सेटल करना है। ठीक है, सो ये सभी पॉइंट है बेटा जो वो किए जाते हैं। ठीक है बेटा, सो बेटा सभी को समझ आ गया। गुड नवप्रीत, हाँ जी, दविंदर समझ में आ गया बेटा। अनम्यूट करो बच्चे। बेटा जिस जिसको समझ में आ गया वो अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है। रुपिंदर कौर, बेटा ड्राइंग्स पता चल गई क्या होते हैं।
ठीक है, तो अभी जो भी मैंने चीजें बताई है बेटा उसको ध्यान से समझना है। ये चीज से, ये टॉपिक की जो थ्योरी है बेटा वो समझने वाली चीज है, समझना होगा आपको हर एक चीज को। वो आप उसको क्रैमिंग नहीं कर सकते, सिर्फ समझना है कि कौन सा पॉइंट कैसे बताया था मैम ने, ठीक है ना। ओके, सो आज के लिए हमारा इतना चैप्टर है बेटा। सो लास्ट क्लास थी जो हमारी, उसका जो भी हमारे न्यूमेरिकल वगैरह थे वो आप प्लीज कंप्लीट कर लेना, और मुझे जो है वो काम की पिक्स सेंड कर देना, ठीक है। आप अपना काम आज शाम तक पूरा कर लो, और जिस जिसका कंप्लीट होता जा रहा है वो हमें मुझे पिक्स सेंड कर दो। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता लग रहा, तो बेटा मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर टिक लगा के सेंड कर देना, तो मैं उसकी जो है वो आपको सोल्यूशन सेंड कर दूंगी सही करके, ठीक है बेटा। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू get many things about partnership, and our next class will be on next topic. Any queries बेटा? किसी ने कुछ पूछना है पूछ सकते हो, थोड़ा सा टाइम है। एनीवेज, ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बेटा।